ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਇਹ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਟੋਟਾ ਮੂਲ ਨ ਆਵਈ, ਲਾਹਾ ਸਦ ਹੀ ਹੋਏ। ਖਾਧੈ ਖਰਚੈ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਦੇ। ਸਹਸਾ ਮੂਲ ਨ ਹੋਵਈ, ਹਾਨਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਾ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪੌੜੀ। ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਅੰਦਰੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਵਰਤਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ। ਜੁਗ ਛਤਿ ਗੋਬਾਰ ਕਰ, ਵਰਤਿਆ ਸੁਨਾਹਰ। ਓਥੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤਾ, ਆਪੇ ਹਰ ਨਰ ਹਰ। ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਏ, ਆਪ ਸਭ ਦੂਹੀ ਬਾਹਰ। ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੌਹਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨਾ ਜੁੜਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਇਹ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਸਲਾਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਚਾਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੰਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਗਣ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ, AI ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਝੱਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਕੋਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੱਪਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੁਖੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਪਿਓ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣੀ, ਆਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਨੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹੋ जी कोई रीझ नहीं हैगी जिहड़ी मैं अपने बच्चों की पूरी ना कीती होवे, पर मेरे बच्चे फिर भी आग्याकारी नहीं, आखे नहीं लगते, फिर भी रल के बैठते नहीं, परिवार दे नाल कोई गल नहीं करते, कोई किते वड़िया रहिंदा है, कोई किधर नूं भज्जिया फिरदा है। आ गवांढियां दे जिहड़ा है वो पता नहीं मसां अपने परिवार का गुजारा किवें करदा है। ਉਹਦੇ परिवार दे विच सारे रात नूं रल के बैठते हैं, हसदे खेडदे ने, प्यार नाल मिलदे जुलदे गल्लां करदे सौ जांदे ने। मैनूं समझ नहीं आउंदी मसला घाट रह कित्थे गई है। वो मुनीम बड़ा सियाना सी, कहण लगा शाहूकार जी मसला सारा पैसे दा है। कहण लगा पैसा तो मेरे को ज़्यादा है। कहंदा तुहाडे को ज़्यादा, तुसीं ताइयों दुखी जे। कहण लगा किवें? कहण लगा ये गरीब है, इन्हें अपने खर्चे सीमित रखे ने, इस करके इकट्ठा परिवार है, असी पैसा इन्ना क कमा लिया, वो रिश्तियां की फिक खत्म हो गई, जे इधर पैसे की भुख पै जाए हाल इन्हां दा भी इदां बन जाएगा। शाहूकार कहंदा मैं तेरी गल दा यकीन नहीं करदा, मैं चाहुंदा कि ये भी एक बारी पता तो लगे ये क्यों जिहड़े वो सुखी ने जां मैं क्यों दुखी हाँ। उस मुनीम कहण लगा शाहूकार जी मैं जुगत दे देना, ये भी तुहाडे वांग सारा टब्बर कंधा ना टक्करा मारेगा, जे तुसीं इन्हां नूं खुश नहीं ना वेख सकदे ये भी दुखी हो जाएगा। वो कहने लगा दस। कहने लगा इदां करो जी मैनू उन्हां समय दे कहंदा 95 रुपये दे दिओ। कहंदा भी तू इन्नी माया की करनी है? कहंदा देखो जे इन्हां नूं दुखी करना गवांढियों नूं पैसे तो लगने ने। कहंदा 95 रुपये दे दिओ, अगले दिन तो जे इन्हां घर च सुख मिल गया तो मैनू दस दिओ। उन्हें जी शाहूकार ने 95 रुपये दिते। उन्हें मुनीम ने पोटली बन के 95 की गवांढियां की कंध तो परे सुट दिते। गवांढियां के घर चले गए। जो 95 रुपये मिले वो हुण बंदा सोचदा भी 5 जोड़ लीए 100 बन जाए पूरा। वो उन्हां समयां दीयां गल्लां जो 1 लाख रुपया जिहदे कोल हुंदा सी ना उहदे कोठे ते एक झंडा झूलदा हुंदा सी। पुराने समय च तुसीं देखो जे किते इतिहास नूं फोल के ना गुरु नानक साहब जी दे वेले जिहदे कोल 1 लाख रुपया होना तो उहदे कोठे ते एक झंडा झूलना। इतिहास 7-7 लाख वालियां दी गल आउंदी, उन्हां दे कोठियां ते 7-7 झंडे झूलदे हुंदे सन। उहदा भाव सी अज ते लाख रुपया आपां जेब च पाई फिरदे हैं। अज का सिस्टम बहुत चेंज हो गया। उदों 95 रुपये की बड़ी अहमियत सी। वो बंदा सोचदा भी 95 आ गए जिन्हें दिते ने किते 5 भी मिल जाते। वो कहंदा हुण मैं इनू 100 पूरा कर ला। साडा भी इहो हिसाब हुंदा ना भी मैं इन्ने क महीने इन्नी क अपनी सेविंग कर ला, आ पैसे खर्चे पूरे कर ला। वो फिर असीं कंजूसी करते जिहदे तो दुख निकलते हैं। उन्हें बंदे ने की कीता जी, जिहड़ी दिहाड़ी अगे आउंदा सी जे कोई बच्चिਆਂ ने धेली चवानी मंगनी खर्चण वास्ते उन्हें कंजूसी करनी शुरू कर दी। जो पैसे आए बच्चों ने वेखिया भी पैसे भापे को आए ने, वो लागे बह के पहला तो उन्होंने भजा दिता, गुस्से हो गए, न्याणे तां भी नाराज़ हो गए। बाद ज्यों ज्यों उन्ने दे दिन बतीत होंदे ने वो 5 रुपये पूरे करने के पासे कंजूसी वाले पासे लग गया। रोज़ आण के पोटरी खोल के बह जाने किन्ने होए, परिवार दे विच कलेश पैना शुरू हो गया। एक दिन इहो जिहा होया जिन्ना कलेश शाहूकार दे घर से उन्ना कलेश उहदे घर च पै गया। मुनीम कहंदा शाहूकार जी आ देख लो, ये सारा मसला पैसे का। अज सहूलत देनी बच्चों को माड़ी गल नहीं, पर बच्चों के कोल सदाचार गुण नहीं है, साडे विच नैतिकता नहीं हैगी। एक गल जीवन दे विच याद रखियो, जीवन दे विच पैसा बहुत जरूरी है। मैं कदी ये गल नहीं कहता कि सिख गरीब होवे। गरीब बंदे नूं सच्ची गल है कोई नहीं पुछदा, पर जिथे तुसी पैसे की अहमियत देखनी है नाल उत्थे बच्चे नूं माँ बाप की अहमियत भी समझा दिओ कि पुत्त जिथे पैसा कम आउणा है उत्थे पैसा चलेगा, पर जिथे माँ बाप कम आने ने उत्थे पैसा भी नहीं चलता। जिथे तेरे रिश्ते भैन भरावां ने खड़े होना है ना उत्थे पैसा नहीं काम करेगा। पैसा अज हर थां दे उत्ते चलदा है, पर एक गल याद रखियो कुछ इहो जिहियां जगह ने जिथे लोड़ पैंदी उत्थे परिवार काम आउंदा है, उत्थे फिर घर दे बच्चे धीआं पुत्त काम आउंदे ने, माँ बाप काम आउंदा, उत्थे पैसा नहीं जे काम करदा। मैं अक्सर कहना ना जिन्हां घरां 'च बच्चे ने वो रब दा शुक्र करिया करो। कई बारी ना मावां अक जांदियां ने बच्चों तो, बच्चे शरारती हुंदे ने, सारे इदां दे ने ते शरारती होने नाल किसी वेले वध घट बच्चों को बोल देंदे ने। मैनू बिल्कुल नहीं पसंद। मैं एक गल कहना ना, शुक्र करो रब ने घर च औलाद दिती है। कई बारी असीं कह देंगे ना जी नजायज़ उजाड़ा करते हैं बच्चे, करन दिओ, तुहाडे ही ने, तुसीं कमाए उजाड़ा करदे ते करन दिओ, पर समझा दिओ इन्ना कि नशे वाले पासे गलत पासे ना जान। एक गल याद रखियो, जे घर च औलाद ना होवे ते तुसीं पैसा की करोगे? घर दे विच माँ दा काम की खलारा ही साਂਭਣਾ ਉਹਨੇ, तो जे बच्चे ना होए तो खलारा सियाणा बयाणा कोई पाउंदा देखिया तुसीं? बच्चे ने खलारा पवेगा, रब दा शुक्र करो उन्हें धीआं पुत औलाद दिती है, वो खलारा पाउंदे ते तुसीं रीझे रहिंदे जे सारी दिहाड़ी।
बच्चे रब ने दिते ने तो वो पैसे डाउंदे ने तो तुसीं कमाउंदे जे, नहीं तो उन्हां घरां दे विच वेख लो जिहड़े ना विचारे बंदे ते ना जनानियां, पैसा उन्हां दे कोल भी बड़ा, उन्हां दे घर च बाल नहीं खेड़दे। इस करके ये एक माया का पक्ष सिर्फ तुहाडे मैं सामने रखिया है कि पैसा जदों आउंदा है वो अपने नाल कई कुछ लैके आउंदा है। पैसा खुशियां भी लियावेगा, पर दुनियावी पैसा नाल जिहड़ा वो गम वो दुख भी लैके आउंदा है। पर जिहड़ा नाम दा धन जी की गल अज गुरु अमरदास जी कर रहे हैं, इहदे विच दुख नहीं कदी भी आउंदा, इहदे विच कदी चिंता नहीं आउंदी, इहदे विच कदी नुकसान वाली गल नहीं मन च आउंदी। इस करके मैं विचार आरंभन तो पहला एक गल कह देवां, सिख दोवें धन नूं इकट्ठा करे। सिख दुनियावी धन नहीं इकट्ठा करे, मंगता ना होवे। सिख याद रखियो जिहड़ा भीख ना मंगे, सतगुरां ने कहा कि घाल खाए किश हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। तू अपने जीवन दे विच मेहनत कर, इन्नी क मेहनत करके आप जिथे रोटी खानी है किसी गरीब दे भी पेट दे विच दो बुरकियां तेरे हत्थां दियां जा सकन। इस करके सिख किरती होवे। दूसरी बेनती है, जिथे सिख किरती उत्थे सिख नेमी भी होवे। वो परमात्मा का नाम जपे, क्योंकि जे दुनियावी धन वरतोगे संसार सौखा हो जाएगा। जो अध्यात्मकता वाले पासे तुरोगे, जो नाम का धन वरतोगे तो याद रखो निरंकार के घर च जाना सौखा हो जाएगा। ये धन दोवें पासे चलता है। सतगुरु जी इत्थे बख्शिश करते हैं। गुरु अमरदास जी कह लगे, ए मन हे मेरिया मना, यह धन नाम है। कहते ये केवल तो केवल नाम का धन है। केड़ा जी? जित सदा सदा सुख होए, जिहदे नाल सदीवी सुख निकलते हैं। मैं जिवें अर्ज कर दी, दुनियावी धन दे विच सदीवी सुख नहीं, उन्हां दे विचों कई वारी नुकसान भी निकल आउंदे ने, उन्हां दे विचों दुख भी निकलते हैं। इत्थों तक दुनियावी धन के बदले याद रखियो लोग सके भरा आपस में एक दूजे नूं मार मुकाउंदे ने। आ पिछले दिनों की एक वीडियो आ रही, वो भरा ने सके भरा नूं मार के पैली च दब्बिया। तुसीं देखो काहदे वास्ते दब्बिया? पैसे वास्ते, पैली वास्ते करता ना भी जिहड़े मेरे को 4 किले इहदे आउणे वो भी मेरी जेब च पै जाण। आ अज दे हालात ने। जे ज़्यादा माया आ गई तो सके भैन भरा भी जान दे दुश्मन बन जाते। पर नाम का धन इदां दा नहीं। बाणी का बड़ा प्यारा बचन है, कह लगे गुर का शब्द बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे न साकै जल। ये शब्द नूं जिन्ना मर्जी इकट्ठा करी जाओ। दुनियावी धन होवेगा तो चोरी होने का डर है, नाम का धन कभी चोरी नहीं होता। इनू चोर चुरा नहीं सकता, अग साड़ नहीं सकती तो पानी रोड़ नहीं जे सकता। सतगुरु का एक होर प्यारा बड़ा प्यारा बचन आप पढ़ते, यह धन अखुट ना निखुटै ना जाए। ये अखुट है, इस खोटा नहीं पैना, ना किते इन्ने जाना है। क्यों? सतगुरु कहते ये नाम का धन है ही इदां दा। ये मन यह धन नाम है, हे मेरिया मना ये नाम का धन है। जित सदा सदा सुख होए, जिहदे नाल जीव नूं सदैवी सुख प्राप्त हुंदा है, टोटा मूल ना आवे। हुण सुख मिलदा क्यों है? जो पैसे आउंदे ने ना साडी जेब च पैंदे ने, बड़े चंगे लगते हैं, तो जो खर्चने पै जाण उदों थोड़ा जिहा जी नूं होर तरह हुंदा भी पैसे खर्चने पैणे ने। इत्थे कई कंजूस बंदियां दा सुभाਅ है। असीं कह दिंदे बंदा बड़ा कंजूस है, पर बाणी ने एक गल कही है, सूमै धन राखण कौ दिया। कंजूस बंदे नूं धन रब ने सांभण वास्ते ही दिता होया है। उन्होंने जिहड़ा है वो जो पैसा खर्चना पै जाएगा तो जी नूं कुछ होण तक जांदा है। सतगुरु कहते ये नाम का धन इदां दा, टोटा मूल ना होवई। मूल का करांगे अर्थ उक्का ही, टोटा का अर्थ है घाटा। कहते इस घाटा कदी नहीं पैना नाम के धन के। दुनियावी मान लो तुहाडे को बैंक के 1 करोड़ रुपया पिया, तुसीं 10 लाख कढ़ा लिया, वो वधना कि घटना? घट गया ना, मगर 90 रह गया, 10 लाख निकल आया। ये घटेगा दुनियावी धन। पर परमात्मा का नाम धन है, ज्यों ज्यों जपोगे ये त्यों त्यों वधदा है। टोटा मूल ना आवई, लाहा सद ही होए, सदा ही इहदा लाभ ही लाभ मिलता है। बाकी तुसीं देखदे जे 2-4% ब्याज मिलता है। कुछ बैंक अजकल 6-7 जिहड़े वो परसेंटेज के हिसाब नाल वो ब्याज देंदे ने। पर परमात्मा का नाम धन याद रखो ये कई गुना ज़्यादा ब्याजी रूप दे विच मिलदा। से मैं इदां सिर्फ समझण वास्ते ये नाम धन के अर्थ कर देना। तुसीं जमीन दे विच एक बीज बीजदे जे, उतों कितना गुना प्राप्त दात फल प्राप्त करदे जे। मान लो एक अंब है, एक गिटक बीजी, किन्ने अंब लगते हैं उन्होंने? कईयां नूं साल बाद लगते हैं, कईयां नूं 2 साल नहीं लगते हैं। तो साल च या 2 साल बाद कितना अंब लगता है, तो कितना चिर उसकी कितनी उम्र होंगी है, कितना चिर आप वो खाने।
एक गिटक तो किन्ना सानू फल मिल गया। ये परमात्मा का धन सिर्फ समझण वास्ते है। परमात्मा का धन नाम धन इदां दा, इनू सतगुरु कहेंगे सदा लाहा सद ही होए, सदा ही ये लाभ बनया रहिंदा है। खाद्य खर्चया टोट ना आवे, कहते इनू खाई जाओ, इनू खर्ची जाओ। इहदा भाव है आप जपी जाओ तो दूजियां नू जपाई जाओ। खाद्य खर्चया टोट ना आवे, कहते ये तां भी नहीं मुकना। हुण जिन्हें दुनियावी धन जोड़िया होवे ना, कई बंदे इदां दे हुंदे ने, वो लुटाऊ हुंदे ने, आप भी खाई जाते हैं तो यारां दोस्तां नूं पैसे लुटा देंदे, टब्बर बेचारा रोंदा रहिंदा मगर। सतगुरु कहंदे तू रज के खा, इनू रज के जप, 24 घंटे बह के परमात्मा का नाम जप, भावें सारी सारी दुनिया नूं नाम जपाई जाए, इहदे च घाटा कोई नहीं होना। खाद्य खर्चै टोट ना आवे, क्यों सदा सदा ओह दे, वो परमात्मा सदा ही ये नाम का धन दई जांदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कभी भी घाटा नहीं पैंदा। सहसा मूल ना होवई, सहसा का अर्थ है चिंता। दुनियावी धन ज़्यादा आ जाए, मैं क्या तां भी चिंता, जे घट जाए तो तां भी फिकर। बाणी का वचन है जिस ग्रह थोड़ी तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह बहुती सो फिरै परमंता। जिन्हों थोड़ा मिलता है वह बेचारा चिंता च कि मेरे कल नूं की बनेगा। जिहदे कोल ज़्यादा आ जाता वह भटकदा फिरदा, हुण इनू मैं सांभा किवें, कदी इधर लाता कदी इधर लाता। सतगुरु कह लगे ये परमात्मा के नाम का धन, यदी चिंता नहीं कोई भी हैगी। अज तक किसी ने चिंता की होवे भी मैं जपजी साहब का पाठ किया तो इनू सांभ के कित्थे रखा, कोई चिंता नहीं है। पर हाँ लाख 2 लाख रुपया सामभना होवे तो तुहानूं उहदी चिंता होंदी है भी इनू मैं किहड़े पासे लावां। नाम के धन की कोई चिंता नहीं। सहसा मूल ना होवई, हानत कदे ना होए। हानत का अर्थ है नुकसान, इहदा नुकसान भी कोई नहीं हैगा। दुनियावी धन इकट्ठा करोगे ना, ਉਹਦਾ नुकसान है। वो उन्ना चਿਰ है जिन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਡਾ है। जिन्ना चਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ना भी पैसा गंठ तो गुरबाणी कंठ। बाणी वो जिहड़ी याद है, पैसा वो जिहड़ा जेब दे विच है। इस करके दुनियावी धन का नुकसान है, पर सतगुरु कहते ਇਹਦਾ कोई नुकसान नहीं। ये इत्थे भी फायदा दिंदा है, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ज़्यादा फायदा जी जो जप के गां अगली जगह ते जांदे जे, परलोक च जांदे जे, उत्थे भी तुहानूं इज्जत मान दे नाल जाना पवेगा। उत्थे भी शर्मिंदगी नहीं हुंदी भी किहड़ा धन इकट्ठा करदा रहा। प्रोफैसर साहब सिंह ने हानत के अर्थ शर्मिंदगी कीते ने, पर उन्होंने इदां करांगे आपां। हानत के अखरी अर्थ करांगे आपां नुकसान। नुकसान वाले धन के नाल शर्मिंदगी हुंदी भी मैं गवा के आ गया, पर जिस धन के नाल लाभ होवे उहदे नाल इज्जत मान हुंदा है। सतगुरु कहंदे इहदे नाल तैनूं शर्मिंदगी भी नहीं उठाउणी पवेगी। पर मिलदा किवें, नानक गुरमुख पाईए, कहंदे गुरु दे सन्मुख होया ये नाम का धन इकट्ठा हुंदा है। पर किवें, जा कहो नदर करे, जिहदे ते परमात्मा किरपा करदा है उन्होंने ये नाम का धन मिलता है। जिहदे ते मालक की निगाह सवली नहीं। आपां बड़े दिनों तो पढ़ते आ रहे हैं कि राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए, उन्होंने फिर ये नाम का धन नहीं मिलता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ नाम का धन इकट्ठा नहीं ਹੁੰਦਾ। तो मैं एक बेनती करा, वैसे तो मनोविज्ञान इस चीज़ से भी मैं देखदा भी किताबां लिखियां ने दुनियावी पैसे वास्ते भी ਉਹਨੂੰ मनी जनरेट किवें करनी तुसी, पर मैं उस पासे नहीं तुरना। याद रखियो गुरबाणी जिहड़ी है एक गल कहती है, जे नाम का धन इकट्ठा करना तुहाडे अंदर विश्वास जरूर होना चाहिए। ये गल पक्की वाच रखियो। मैं रोज़ कहना, मैं उदाहरण बाणी दी दे देना। बाणी कहती है तू ये गल नूं मन कि परमात्मा हाजिर नाजिर है, कि ज़ाहिर ज़हूर है, कि हाजिर हजूर है। ज़ाहिर ये अरबी का शब्द है। तू प्रतख है, कोई शक नहीं मैनू। तू हाजिर नाजिर है, इस कोई शक नहीं मैनू। पर मैं उस दिन भी कहा जिस दिन आप ये बाहरी अर्थ किए सन, तो उस दिन भी कहा सानू अजे तक ये यकीन नहीं होया। जिस दिन परमात्मा के नाम का या परमात्मा का तुहानूं यकीन हो गया ना, उस दिन ये नाम का धन इकट्ठा होना है। जिन्ना चिर यकीन नहीं होया उदा फिर जिद्दां दा कमाया उदां दा रोड़दा इक्को ही गल बन जाती है। ये गल जरूर मन च सोचियो। बाणी ने हर थां ते ये विश्वास की गल की है। बाणी ने यह नहीं कहा कि परमात्मा होवेगा, बाणी ने कहा परमात्मा है। तुसीं श्लोक पढ़दे जे जपजी साहब की आरंभता ते कि आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी। वो हुण भी मौजूद है, गां भी होवेगा, पहला भी मौजूद सी। इस करके परमात्मा बारे कदी मन च ये ख्याल नहीं रखना कि परमात्मा होवेगा।
नहीं, ये नैगेटिव नहीं कभी भी। सतगुरु कहते वो जाको नदर करे, जो उन्हें कृपा की गुरमुख पाई है गुरु के सन्मुख ये नाम का धन मिल जाएगा। पर मैं जी बेनती कर रहा मिलना तां जे सानू गुरु ते भरोसा होगा। अक्सर असी कई बारी गुरु घर आण के अरदास करते हैं भी मन च सोचते मैनू पता नहीं चीज़ मिलनी कि नहीं मिलनी, तो जो पहला ही तू कह के आया मैनू मिलनी नहीं है, अद्धी तो नैगेटिविटी तेरे मन च पहला ही आ गई, तेनों यकीन की होया। मैं इत्थे निक्की जी गल कह जाना समय के हिसाब ना, एक बारी जी पिंड पुराने समय जी खेती मीह पर निर्भर होंदी सी, पिंड वाले इकट्ठे होके ना इंद्र की पूजा करन चले गए। हिंदू मत के इंद्र जिहड़ा वो मीह पवाउण वास्ते रखिया उन्होंने, ਉਹਦੀ पूजा करने वास्ते चल गए। अगों एक जिहड़ा सी वो मस्त बंदा मिल गया, मस्त मलाउणा जिहड़ा रब की बंदगी करने वाला। वो कहंदा कित्थे चले जे सारे, कहंदा इंद्र की पूजा करना। कहंदा सारा पिंड चलिया, की गल, कहंदे भी मीह नहीं पिया उहदे करके काल पै जाएगा, फसलां नहीं होणीआं, नुकसान हो जाएगा। तो कहंदा पूजा करने नाल की होवेगा, कहंदा मीह पवेगा। कहंदा तुहानूं यकीन है, कहंदा हाँ यकीन है। कहंदा छतड़ियां कित्थे तुहाडीआं। गल बड़ी नोट करने वाली सी कि जे यकीन है मीह पवेगा फिर भेज के आओगे, छतड़ियां तो लईआं नहीं तुसीं। असी रब ते इन्ना कि यकीन करते जी मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, पर वो छतड़ी वाला काम नहीं करते भी जे पूरी होगी तो नाल आ भी काम होना है। बाणी कहती तू इन्ना कि ज़्यादा भरोसा रख, जिदन भरोसा रख लिया तो अमृत बाणी का बचन है जी, पिंगुल पर्बत पार परे खल चतुर बुकीता अंधले त्रिभवन सूझिया गुर भेट पुरीता। जिहड़ा कहंदा तुरिया नहीं जाता पिंगला, जिदन भरोसा करन ते आ गया गुरु उन्होंने पहाड़ों ते भी चढ़ देना। सिर्फ ये विश्वास की गल है। अज साडे अंदर इन्नी कि ज़्यादा नैगेटिविटी भरी हुई है, मोबाइल खोल लो नैगेटिव, हम किसी ने गल कर लो नैगेटिव, हर पासे नैगेटिव नैगेटिव। तुसीं जिन्ना चिर ये नैगेटिव की बीमारी नहीं ना अपने अंदरों कढ़दे उन्ना चिर नहीं जे किसी पासे लग सकते। ये दोवें पासे चलता। मनोविग्यान भी ये पॉजिटिव की गल करती है भी तू सोच ये चीज़ है। तो मैं वेखदा बाणी नूं, तो बाणी भी तो इहो गल कह रही है, तू कह भी परमात्मा मौजूद है, जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई। तू कहना मैं पहला जगह साफ करके फिर महाराज का स्वरूप लियावांगा, बाणी कहती तू हुणे अरदास कर, वो हुणे ही हाजिर है। इस करके गुरमुखो ये बड़ी जरूरी गल है। ये नाम का धन तां खट्टा होना है जे सानू परमात्मा ते भरोसा होया। जे भरोसा ना होया तो जिहड़ा आपां पहला श्लोक 2-3 दिन ला के वाचे वो उहो ही काम आ जाएगा, फिर रब नहीं मिलना। सतगुरु कह लगे नानक गुरमुख पाई है, ये नाम का धन गुरु के सरमुख होके मिलता है। जाको नदर करे पौड़ी, अगे पौड़ी गुरु रामदास पातशाह जी की कह लगे आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर। अंदरे का अर्थ है जीवां दे अंदर। कहते हे प्रभु आप ही तुसी सारे जीवां दे अंदर विचर रहे जे, आप ही बाहर जे। जिमें आप कह दीए भी मनुख के अंदर भी वो है तो बाहरी तौर पर बनस्पति होरां थावां ते वेखदे वो परमात्मा आप ही। क्योंकि अन्न मत्तां ये गल कहिंदियां ने कि शैतान वखरा है भगवान वखरा है, पर गुरमत नहीं कहिंदी। गुरमत कहती तू हर एक दे विच मौजूद है। सतगुरु कह लगे आपे सब घट अंदरे, सारियां दे अंदर भी तू है, आपे ही बाहर बाहर भी तू है, आपे गुप्त वरतदा, आप ही तू लुकिया होया सारे अंदर, किसी ने देखा थोड़ी है। जिवें मैं कल मन की गल की सी, बॉडी का पार्ट थोड़ी है, कोई अंदरों आखे भी जी रब कढ़ के विखाओ, कोई पिता थोड़ी कढ़ के विखा दोगे। ये परमात्मा का नाम है, वो गुप्त अंदर वरतदा है। आपे ही जाहर, जाहर का हुणे मैं अर्थ किया अरबी का शब्द, यदा अर्थ है प्रतख। आप ही जिहड़े अभ्यासी ने उन्होंने तू प्रतख नज़र आउंदा है। बाणी कहती है मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वड भागा, उत्थे प्रतख शब्द है। तू आप ही प्रतख भी जीवां नूं मिलदा है। कह लगे जोग शक्ति गुबार कर वरत्या सुनाहर। सुनाहर का अर्थ है सुन अवस्था दे विच। ये विद्वानां दी मत है जी कि जदों परलो आ जाती है, भाव सारा कुछ नाश हो जाता है, उस नाश तो लैके ते नवीं रचना तक शक्ति युग का समा लगता है, तो परमात्मा उदों सुन अवस्था दे विच हुंदा। ये जिहड़े ने साडे पुरातन विद्वान उन्हां दा मत है। पर ये आपां जिहड़े अर्थ करदे वो इस हिसाब दे नाल कीते जांदे ने शक्ति युग नूं लैके भी कई युग तक, कई लम्मा समा, जो अरबद नरबत धुंधू कारा धरन ना गगन ना हुक्म पार, जो कुछ नहीं सी, बड़ा लम्मा समा, उदों परमात्मा केवल ते केवल आप ही सुन अवस्था दे विच सी। युग शक्ति ही गुबार कर। ये मैं तां शक्ति युग का जिक्र कर दिता क्योंकि ये अखरी अर्थ करने पैणगे। ये विद्वानां दा, पुराने विद्वानां दा शुरू तो ख्याल चलिया आ रहा सी कि परमात्मा शक्ति युग दा विच स्पेस पा दिंदा, जमा समा पा दिंदा है। गुबार का अर्थ हुंदा घुरप हनेरा। युग शक्ति ही गुबार कर वरत्या सुनाहर, उथ है वेद पुराण ना शाश्ता। आपे हर
नरहर, हर कहते हैं हरि नूं, नर कहते हैं मनुख नूं, मनुखां दा मालक परमात्मा। सतगुरु कह लगे जो सुन अवस्था दे विच सी, ना उदों कोई धार्मिक ग्रंथ सी, ना कोई धार्मिक पुस्तक सी। उत्थे वेद 4 वेद, कुरान 18 पुराण, शास्त्र 6 शास्त्र, इन्हां चों कोई भी धार्मिक पुस्तक ग्रंथ उदों मौजूद नहीं सी। बैठा ताड़ी लाए, ताड़ी का अर्थ हुंदा समाधि। कह लगे तुसी परमात्मा जीओ, प्रभु जीओ, तुसी समाधि ला के बैठे हुए सी। आप सब दू ही बाहर, सारी सृष्टि तो बाहर हो के, भाव जो परलो आ चुकी सी, कुछ नहीं सी मौजूद, तो उदों तुसी आप ही एक एकांत दे विच जिहड़ी समाधि ला के बैठे हुए सो। अपनी मित आप जानदा, मित का अर्थ है मिणती, अंदाजा। ये अवस्था जिहड़ी सी, इहदा मापदंड असी नहीं ला सकते, इहदा अंदाजा तुसी आप ही जानदे जी। साडा ख्याल है ना 36 युग है, तो जो कोई बनया नहीं सी उदों युग कित्थों आ गए। मिनती उदों करोगे ना भी जिहड़ी चीज़ तुहाडे सामने आ गई, जिहड़ी चीज़ सामने नहीं उहदी मिनती नहीं हो सकती। हवा की किद्दां मिनती कर लोगे तुसीं? आप मेरे को माइक ये तुसीं कह दो जी फुट की पाइप है, तो जे हवा आप उदा किद्दां मिनती करांगे? परमात्मा जो अपने आप से सतगुरु कहते उहदी ये अवस्था, वैसे हुण भी असीं अवस्था नहीं बयान कर सकते। अपनी मित आप जानदा, अपनी मिनती नूं आप ही तू जानदा है। क्यों? आपे ही गौहर, गौहर कहते हैं डूंगा समुंदर वांग, तू समुंदर वांग बहुत ज़्यादा डूंगा है, तेरा कोई मापदंड नहीं अज तक लिया सकिया, तेरा कोई अंत नहीं पा सकिया। हाँ, जिहड़ा समुंदर च छाल मारेगा उस समुंदर दे विच समा ते जाएगा, पर अंत नहीं पा सकता। जिहड़ा तेरे विच छाल मारेगा, जिहड़ा नाम जपेगा, वो तेरा रूप तो हो सकता है, पर तेरा अंत नहीं पा सकता। आपे ही गौहर तू इन्ना ज़्यादा डूंगा है। सो ये सी 18वीं पौड़ी ते नाल लगदे सलोकां दी विचार। समुच्चा तत्त भाव ये है कि जदों कुछ नहीं सी उदों भी परमात्मा सी, हुण भी परमात्मा है। उस परमात्मा की प्राप्ति नाम जपण दे नाल होनी है, ते नाम तां जिहड़ा वो प्रवान होना है जे तू अपने हिरदे दे विच परमात्मा के शब्द नूं विल लवेगा, तो परमात्मा की प्राप्ति है। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां, भुल्लां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। बैठा ताड़ी लाए आप सब दूही बाहर, अपनी मित आप जानदा, आपे ही गौहर। वाहिगुरु जी का